اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ جس کا رنگ توے کی طرح سیاہ تھا اور اس کا کاٹا آدمی چند لمحوں میں دم توڑ دیتا تھا۔ اس سانپ کے دو منہ تھے۔ میرا خیال تھا کہ اس برتن میں مشروب ہوگا، لیکن میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ اس میں سے سانپ نکلا جس نے میرے منہ پر حملہ کیا، لیکن سانپ نے مجھے ڈسا نہیں، وہ میرے منہ پر رینگنے لگا۔ لیوما اور کمباڑا کا خیال تھا کہ سانپ مجھ پر حملہ کر کے مجھے ڈس لے گا اور اس کے چند لمحوں کے اندر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اس وقت ان دو کے علاوہ میرے پاس اور کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ وہ دونوں جان بوجھ کر ایسے وقت میں اور ایسی جگہ پر میرے پاس آئے تھے جب میں بالکل اکیلا تھا، اور یہ منظر دیکھ کر ان کے اوزان قطع ہو گئے کہ سانپ نے مجھے سرے سے کاٹا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ میرے چہرے پر ادھر سے ادھر گردش کرنے لگا تھا۔ وہ میری فوری موت کے متوقع تھے، لیکن حالات ان کے توقعات کے بالکل برعکس جا رہے تھے۔ وہ گھبرا کر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ بڑا ذائقہ دار مشروب تیار کیا ہے تم نے لیوما، میں نے سانپ کو ہاتھ سے پکڑ کر لیوما کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ سانپ نے اپنے ایک منہ سے فوراً لیوما کے چہرے پر کاٹ کھایا۔ لیوما نے ایک چیخ مار کر سانپ کو ہاتھ سے بھگانے کی کوشش کی اور سانپ سیدھا کمباڑا کے شانے پر جا گرا۔ اس نے کمباڑا کو بھی ڈس لیا۔ کمباڑا کی چیخ بڑی ہیبت ناک تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر سانپ کو پکڑ لیا اور چٹکی سے اس کا سر مسل دیا۔ یہ چھوٹا اور نازک سا سانپ تھا، لیکن بے حد زہریلا تھا۔ لیوما اور کمباڑا کی چیخیں اتنی دل دہلا دینے والی تھیں کہ آس پاس کے بہت سے لوگ بھاگتے ہوئے آ گئے۔ میں نے بتایا کہ لیوما اور کمباڑا کو ایک سانپ نے کاٹ لیا ہے اور وہ بڑا زہریلا سانپ ہے۔ میں نے ان لوگوں کو وہ مردہ سانپ دکھایا اور بتایا کہ میں نے اس سانپ کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس سانپ کو چلیپا کہتے ہیں۔ قبیلے کے ایک معمر آدمی نے کہا، اس کے کاٹنے کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر کہنے لگا، تاہم ظریف کو بلا لو، شاید وہ کچھ کر سکے۔ کوئی جائے اور جلدی سے ظریف کو بلا کر لائے۔ کئی آدمی ظریف کو بلانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ ظریف کے نام سے میں واقف تھا۔ وہ سابق درگا قبیلے میں سانپ پکڑنے، سانپ پالنے اور سانپوں کے کانٹے کا علاج کرنے کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ ذرا سی دیر میں ظریف آ گیا اور وہ ایک ضعیف العمر شخص تھا اور اپنے ہاتھوں میں مٹی کے کئی چھوٹے برتن اٹھائے ہوئے تھا۔ میں نے مرا ہوا سانپ اسے دکھاتے ہوئے کہا، اس سانپ نے ان دونوں کو کاٹ لیا ہے اور میں نے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ ظریف نے سانپ کو دیکھتے ہی مایوسی سے گردن ہلا دی۔ یہ جلیبا سانپ ہے اور اس کے دو منہ ہوتے ہیں۔ یہ دونوں منہ سے ڈستا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس اس کے کاٹنے کا کوئی علاج نہیں، اور میرے ہی پاس کیا، کسی کے پاس بھی سانپ کے کاٹنے کا کوئی علاج موجود نہیں ہے۔ میں ان دونوں کی جان نہیں بچا سکتا، اور مجھے اس کا یقین ہے، تاہم میں کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کروں گا۔ اس نے اپنے برتنوں میں سے کئی اقسام کے مرہم نکالے اور انہیں لیوما اور کمباڑا کے زخموں پر لگانے لگا۔ لیوما اور کمباڑا دونوں پر نیم بے ہوشی کی سی کیفیت طاری تھی۔ ان کے جسم بڑی تیزی سے نیلے پڑتے جا رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا اور وہ دونوں چند منٹ کے اندر ختم ہو گئے۔ قبیلے میں تقریباً ایک ہفتے تک کمباڑا اور لیوما کی موت کا سوگ منایا گیا۔ کسی کو اس بات کا شبہ تک نہیں تھا کہ کمباڑا اور لیوما کی موت کا اصل سبب یہ ہے کہ وہ مجھے ہلاک کرنا چاہتے تھے اور خود ہی اپنی سازش کا شکار ہو گئے۔ تمام لوگوں کی نظروں میں یہ سانپ کے کانٹے کا ایک عام سا واقعہ تھا۔ قبیلوں میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہی رہتے تھے، اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ کمباڑا اور لیوما کی لاشوں کو جلا دیا گیا اور یہ دونوں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ کاشن قبیلے کے لوگوں نے اتفاق سے یہ فیصلہ کیا کہ نارو کو قبیلے کا نیا سردار بنا دیا جائے۔ چنانچہ نارو قبیلے کی سردار بن گئی اور میری حیثیت روحانی پیشوا ہی کی رہی۔ کافی طویل عرصہ گزر گیا پروفیسر۔ اس عرصے کے دوران میں نے کاشن قبیلے کے لوگوں کو بہت سی نئی باتیں ایسی سکھا دی تھیں جن سے دونوں قبیلے والے نہ واقف تھے۔ میں نے انہیں گھوڑے پالنا اور گھوڑوں کی پشت پر سواری کرنا سکھایا۔ مویشی پالنا اور ان کے دودھ کا استعمال کرنا وہ انہیں میں کافی عرصہ پہلے ہی سکھا چکا تھا۔ اب میں انہیں آہستہ آہستہ زراعت کی طرف لا رہا تھا۔ میں نے یہاں اس سرزمین پر جنگل کی خاک چھاننے کے دوران بعض ترکاریوں اور کئی طرح کی بیلیں اور پودے اور جھاڑیاں دیکھی تھیں، اور میں نے ان میں سے بانس کے بیج بھی جمع کر لیے تھے۔ اب میرا ارادہ تھا کہ زمین کے ایک حصے کو صاف کروا کے اسے ایک کھیت کی شکل دے دوں اور ان لوگوں کو کھیتی باڑی کے فن سے باقاعدہ روشناس کرا دوں۔ میں نے جگہ کا انتخاب کر لیا تھا اور قبیلے کے کچھ لوگوں کو اس کام پر مامور بھی کر دیا تھا کہ وہ اس جگہ کی صفائی ستھرائی کا آغاز کر دیں۔ ندی سے کھیت تک پانی لانے کا بندوبست بھی کروا دیا گیا۔ وہ گرمی کی ایک چمکیلی صبح تھی اور میں ٹہلتا ہوا ساحل کی طرف نکل گیا۔
क्योंकि साहिल हमारी बस्ती से खासे फासले पर था, लेकिन बस्ती के लोग बराबर साहिल पर आते जाते रहते थे। मैंने दरख्त के कई सूखे हुए तनों को अंदर से खोखला करके लोगों को बैठने और समंदर में जाकर सैर करने और मछलियां पकड़ने के लिए किश्तियां बनवा दी थी और चप्पुओं के जरिए किश्तियां चलाना भी सिखा दिया था। अब अक्सर लोग हिम्मत करके समंदर में किश्ती में बैठकर निकल जाते। जो निस्बतन बहादुर नहीं थे वो किश्ती में नहीं बैठते थे और समंदर में सिर्फ तैरने और नहाने पर अक्तिफा करते थे। बहरहाल लोगों को एक दिलचस्प मशगला हाथ लग गया था और वो इस नए काम से बहुत खुश थे। मैं टहलता हुआ साहिल की तरफ चला गया और मैंने समंदर में छलांग लगा दी। तैरते तैरते मैं काफी दूर निकल गया था। अचानक दूर से किसी चीज के धुंधले धुंधले नक्कुश नजर आए। मैंने गौर से देखा, लेकिन फासला बहुत ज्यादा होने की वजह से मैं इस बात का यकीन नहीं कर सका कि वो क्या चीज है। मैंने उसी समय तैरना शुरू कर दिया और जब मेरी आंखें उस चीज के खतूत को वाज़ेह तौर पर देखने के काबिल हो गईं तो मैं सख्त हैरत ज़दा हो गया। वो एक जहाज था। इस इलाके में, इस समंदर में, वैशी अफ्रीका के तवील और लामताही साहिल के इस टुकड़े के नजदीक मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जहां तक यहाँ के बाशिंदों से मालूमात हासिल हो सकी थी, मैं इस सरजमीन पर कदम रखने वाला पहला गैर मुल्की था जो इन लोगों के बकौल दूसरी दुनिया से आया था। लेकिन अब और लोग भी आ रहे थे। ना जाने ये लोग कौन होंगे और इनका रवैया मकामी लोगों के साथ कैसा होगा। ये तो साफ जाहिर था कि इन लोगों का ताल्लुक तरक्की याफ्ता दुनिया से होगा। इनका जहाज इस बात का सबूत था, लेकिन ये लोग किस इरादे से इस तरफ आ रहे थे? क्या इनके अज़ाइम जारहाना तो नहीं थे? और इस किस्म के बहुत से सवालात अचानक मेरे जहन में बेदार होने लगे और फिर मैंने फौरी तौर पर यह फैसला किया कि इन लोगों के साहिल पर पहुंचने से पहले ही मैं इन लोगों के बारे में मालूमात हासिल कर लूंगा और अगर ये कोई खतरनाक इरादा लेकर आने वाले लोग हुए तो इनके बारे में मैं पहले ही यह तय कर लूंगा कि मुझे क्या करना है। चुनांचे मैंने तेजी से जहाज की समत तैरना शुरू कर दिया। मुझे जहाज को देखकर बड़ी हैरत हो रही थी। भला इस सुनसान और वीरान साहिल के नजदीक है जहाँ दूर दूर तक किसी जहाज का पता नहीं था, ये जहाज कहाँ से आ गया? मैंने अंदाजा लगाया कि अफ्रीका का ये इलाका जिसमें मैं इस वक्त मुकीम था तमाम बाकी खित्तों से कटा हुआ था और मुझे 100% यकीन था कि बैरूनी दुनिया के किसी इंसान ने यहाँ आज तक कदम नहीं रखा है। यहाँ के लोग जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे थे वो हैवानी दुनिया की सतह से कुछ ज्यादा बुलंद थी और इन लोगों को बैरूनी दुनिया और वहाँ के लोगों के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी कि अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक से पकड़े हुए हजारों लाखों गुलाम इस वक्त यूरोप और एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद हैं और सफ़ेद फार्म ज्यादा तरक्की याफ्ता अक़वाम के बहरी कज़ाक और गुलामों के ताजिर अफ्रीकी ममालिक से गुलामों को पकड़ पकड़ कर लाते हैं। लेकिन अफ्रीका के इस इलाके के लोग इन सारी चीज़ों से नावाकिफ थे। वो इन बातों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, जिनसे मुझे ये समझना पड़ा कि इस इलाके में कभी किसी हमला आवर के कदम नहीं पड़े थे और इसीलिए मुझे ये समझने में दुश्वारी नहीं हुई कि इस तरफ आने वाला जहाज शायद इस साहिल पर आने वाला पहला जहाज होगा। मैंने सोचा कि मुझे इस अमर का जायजा लेना चाहिए कि इस जहाज में कौन लोग सवार हैं और इनका मकसद क्या है। आया वो रास्ता भूल कर भटक कर इस तरफ आ गए हैं या दानिस्ता तौर पर इन्होंने इधर की राह इख्तियार की है, और अगर इन लोगों ने दानिस्ता तौर पर इस तरफ की राह इख्तियार की है तो इनके अज़ाइम क्या होंगे? आया वो गुलामों के ताजिर हैं या बहरी कज़ाक या कोई सौदागर? और मुझे ये बातें इन लोगों की बस्ती में दाखिल होने से पहले ही मालूम कर लेनी चाहिए थी। चुनांचे मैंने जहाज की समत तैरना शुरू कर दिया, लेकिन मैं सतह आब पर नहीं बल्कि ज़ेरे आब तैर रहा था, यानी समंदर के अंदर, ताकि इन लोगों की नज़र मुझ पर ना पड़ सके और वो लोग मेरी मौजूदगी और पेशकदमी से वाकिफ ना हो सके। मैं ज़ेरे आब तैरता तैरता जहाज के बिल्कुल करीब पहुंच गया। जहाज साहिल से बहुत दूर था और इसलिए मुझे इस तक पहुंचने में कई घंटे लग गए। करीब जाकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि कोई बहुत बड़ा जहाज नहीं था। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए थे। मैंने ज़ेरे आब जहाज के साथ साथ तैरना शुरू कर दिया और कुछ दूर जाकर मैंने अपना सर पानी से बाहर निकाला। जिधर मैं उबर कर निकला, इत्तेफाक से उस तरफ अरशे पर कोई आदमी मौजूद नहीं था। मैं आहिस्ता आहिस्ता जहाज की दीवार पर चढ़ता हुआ उसके अरशे पर पहुंचा। किसी की मुझ पर अब तक नजर नहीं पड़ी थी। अरशे पर कुर्सियां बिछाए 4 आदमी बैठे हुए थे जो अपने वजह के एतबार से यूरोप के मुतमव्विल जहाज रां मालूम होते थे। अरशे पर मुझे एक ऐसी जगह मिल गई जहां मैं इत्मीनान से चुप कर बैठ सकता था और इन लोगों की गुफ्तगू सुन सकता था। एक तरफ बहुत सी लकड़ी की खाली पेटियां पड़ी हुई थी। मैंने पेटियों में दुबक कर बैठ गया और इनकी बातें सुनने लगा। वो लोग आपस में हिस्पानवी जुबान में गुफ्तगू कर रहे थे, इसलिए मुझे ये समझने जरा भी दिक्कत नहीं महसूस हुई कि इनका ताल्लुक स्पेन से था। इनमें से एक अपने हाथों का छज्जा बनाए हुए बड़े गौर से दूर साहिल की तरफ देख रहा था। मैंने देखा कि इनके सामने एक मेज रखी हुई थी और उस मेज पर एक नक्शा फैला हुआ था। मेरा ख्याल है मार्कोस कि हम सही समत में पेशकदमी कर रहे हैं। माथे पर हाथों का छज्जा बनाने वाले शख्स ने कहा, वो साहिल अब हमसे ज्यादा दूर नहीं है।
यहाँ खुश किस्मती हमारे इंतजार में है। शायद तुम ठीक कह रहे हो अल्बर्ट, इस शख्स ने जवाब दिया। जिस शख्स का नाम मार्कूस था उसने कहा, क्यों भाई शांतु, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुमसे इत्तिफाक करता हूँ। उस शख्स ने भी जवाब दिया जिसका नाम शांतु था। और तुम क्या कहते हो रोमेरियो? अल्बर्ट ने चौथे शख्स से पूछा जिसका नाम रोमेरियो था। रोमेरियो चंद लम्हों तक गौर से दूर उफक पर नजर आने वाली नहायत धुंधली सी सुरमई लकीर को देखता रहा था और फिर उसने एक नजर इस नक्शे पर डाली जो इन लोगों के सामने मेज पर पड़ा हुआ था। इसके बाद वो हिस्पानवी में बोला, मैं अपने तीनों साथियों की राय से अगरचे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन हमें इस काम को इतना आसान नहीं समझना चाहिए। एक तो ये साहिल बहुत तवील है, न जाने कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, और फिर यहाँ जंगली दरिंदों के अलावा जंगली इंसानों का मसला भी दरपेश है। न जाने इन घने जंगलों में कैसे कैसे खूनखार वहशी आबाद हैं, और अगर हमें देख पाएंगे तो हमारा क्या हश्र करेंगे। इस सिलसिले में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, मार्कूस ने कहा। अगर इन इलाकों में कोई आबादी मौजूद है तो हमें इन लोगों से खौफजदा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हम इन लोगों को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखते, बशर्ते कि इनकी तरफ से पहल न हो। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास यकीनन इनके मुकाबले में ज्यादा बेहतर साजो सामान और हथियार मौजूद हैं। वो लोग लड़ाई में हमसे जीत नहीं सकेंगे। लेकिन ये बात भी तय है मार्कूस, अल्बर्ट ने सख्त लहजे में कहा, कि अगर जरूरत पड़ी और कोई दूसरा रास्ता हुआ तो हम इस पूरी की पूरी आबादी को तहस नहस कर देंगे। जो भी हमारी राह में रुकावट बनने की कोशिश करेगा हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमने स्पेन से अफ्रीका तक का ये तवील सफर और जानलेवा सफर महज इसलिए तय नहीं किया कि हम खाली हाथ यहाँ से जा सके। तुम सब लोगों को मालूम है कि मैंने अपने दोस्त लार्गो के वालिद के हाथ के बनाए हुए इस पुराने नक्शे के लिए कितने पापड़ बेले हैं। लार्गो इस नक्शे को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता था और किसी को इसकी हवा तक न लगने देता था। इसके दोस्तों में किसी को भी इस नक्शे के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं वो वाहिद शख्स था जिस पर लार्गो पूरा एतमाद करता था, और उसने मुझे ये बात बताई थी कि इसका दादा आज से 50 साल पहले अपने चंद साथियों के साथ एक जहाज में बैठकर इस तरफ आया था और उसने यहाँ के साहिल पर चट्टानों के दरमियान सोने के ढेर देखे थे। इन लोगों ने अपना जहाज सोने से भर लिया था और जल्दी जल्दी वापस हो गए थे। लेकिन जब ये स्पेन के साहिल से काफी दूर थे तो इन्हें एक समंदरी तूफान ने आ घेरा और इनका जहाज डूबने लगा। इत्तेफाक से एक जहाज इनके करीब से गुजर रहा था। इस जहाज के लोगों ने इनको बचा लिया, लेकिन वो इनके जहाज को ना बचा सके। मगर लार्गो के दादा और इसके साथियों ने बहुत सा सोना अपनी जेबों में छुपा रखा था, जिसे वो हिफाजत से अपने घर ले आए। तमाम सोने की भारी मिकदार से हाथ धोना पड़ा। लार्गो का दादा दोबारा यहाँ आना चाहता था और इसी घर से उसने ये नक्शा तैयार किया था। वो अपने वक्त का एक माहिर जहाजरां था, लेकिन जिंदगी ने उसे इतनी मोहलत नहीं दी कि वो दोबारा इधर का रुख करता। ताहम मरने से पहले उसने अपने बेटे और लार्गो के बाप को इस बारे में सारी तफसीलात बता दी थी, लेकिन लार्गो के बाप को इससे ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और वो एक मुहिम जो शख्स नहीं था और कनात पसंद घरेलू जिंदगी पसंद करता था। इसीलिए उसने इस नक्शे को हिफाजत के साथ ही अलमारी में बंद कर दिया और फिर शायद वो इसे भूल गया। एक दिन लार्गो को अलमारी की सफाई के दौरान यह नक्शा मिल गया और उसने अपने माँ बाप से इसके बारे में पूछा, जिसने इसे सारी तफसीलात बता दी। लार्गो का इरादा था कि वो ये सफर खुद करे और सोना हासिल करे, इसीलिए वो इस नक्शे को बहुत एहतियात से रखता था और मेरे अलावा किसी से भी उसने इसका जिक्र नहीं किया था। मुझे वो अपना अजीज तरीन दोस्त समझता था। और अल्बर्ट कहका मार कर हंसने लगा, प्रोफेसर क्या लार्गो ने तुम्हें यह भी बताया था कि इसके दादा की मुठभेड़ यहाँ इंसानों से हुई थी या नहीं? शांतो ने सवाल किया। इस बारे में लार्गो के दादा का कहना था कि इन लोगों का छोटा सा जहाज शाम के धुंधलके में साहिल के करीब पहुंचा था और इन्होंने इसे चट्टानों की आड़ में इस तरह छुपा कर खड़ा किया था कि अगर यहाँ कोई आबादी हुई भी तो लोगों की नजर इस पर ना पड़े। और फिर सुबह को जब इन लोगों की नजर पथरीली चट्टानों पर पड़ी तो इन्हें जा बजा सोने के ढेर बिखरे हुए नजर आए। साहिल दूर दूर तक वीरान पड़ा हुआ था और किसी इंसान का पता तक नहीं था। वो लोग सारा दिन एहतियात से सोना जमा करते रहे और इसे जहाज में लाते रहे। 2 आदमी निगरानी के काम पर मामूर थे, लेकिन शाम तक साहिल के इस हिस्से में कोई हरकत नजर नहीं आई। या तो ये इलाका इंसानों से खाली था और अगर यहाँ इंसानों की कोई बस्ती थी भी तो कम अज कम उस दिन कोई शख्स इस तरफ नहीं आया। शाम होते होते लोगों ने काफी सोना जमा कर लिया था। इसके बाद उन्होंने फौरन लंगर उठाया और रवाना हो गए थे। इसका मतलब यह है कि इस बारे में कोई बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि इस इलाके में इंसान मौजूद हैं या नहीं। रोमेरियो ने कहा, आज से 50 साल पहले लार्गो का दादा जब यहाँ आया था तो उसे कोई इंसान नजर नहीं आया, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इस वक्त भी ये इलाका इंसानों से खाली हो। और अगर यह फर्ज भी कर लिया जाए कि आज से कई साल पहले यहाँ इंसान मौजूद नहीं थे तो ऐन मुमकिन है कि इस तवील अरसे के दौरान इन्होंने यहाँ कोई बस्ती बसा ली हो और अब ये इलाका इंसानों से खाली ना हो। तुम्हारी बात में वजन है,
रोमेरियो को मार्कोस ने जवाब दिया, हमें इस तरफ से गाफिल नहीं होना चाहिए और बेहद चौकन्ना रहना चाहिए। हो सकता है कि जंगली लोग अचानक हम पर हमला कर दें। अगर इन्होंने हम पर हमला करने की हमाकत की तो इनमें से एक भी जिंदा बचकर नहीं जा सकता। अल्बर्ट ने कहा, लेकिन मैंने सुना है कि अफ्रीका के वैश्यों के पास जहर में बुझे हुए तीर होते हैं जो इंसान को फौरन हलाक कर डालते हैं। अगर इन्होंने अचानक तीरों की बारिश कर दी तो हम क्या करेंगे? हम सब के पास खुद और जरा बख्तर हैं। अल्बर्ट ने कहा, साहिल के करीब पहुंचने से पहले हम सब लोग पूरी तरह मुसल्ला हो जाएंगे। अगर यहाँ इंसान मौजूद हुए और इन लोगों ने बेखबरी के आलम में हम पर हमला करने या तीरों की बारिश करने की कोशिश की तो इनके तीरों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा और हम सब इन सबको कत्ल कर देंगे। और तुम्हारा ख्याल है कि ये लोग हमारे हाथों आसानी से कत्ल हो जाएंगे? रोमेरियो ने पूछा। इन बेचारों के पास इसके अलावा और कोई चारा भी क्या हो सकता है? अल्बर्ट ने हंसते हुए कहा, भला वो हमारे तेज तुंद और धुआंधार हथियारों के आगे कहां तक टिक सकेंगे? और फिर इन लोगों को तो शायद लोहे का इस्तेमाल भी ना आता होगा। वैसे एक बात है, मैंने बाज़ जगहों पर स्याह फाम कनीज़ों को देखा है। इनके हुस्न का भी अपना एक मखसूस अंदाज होता है, बड़ा कटीला हुस्न होता है। काश यहाँ की स्याह फाम हसीनाएं हमारे भी हाथ लग जाएं। सुनो अल्बर्ट, मेरी बात गौर से सुनो, मार्कोस ने कहा, हमें ज्यादा चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। हम जिस खास काम से यहाँ आए हैं वही हमें सरअंजाम देना चाहिए और अपनी सारी तवज्जो इसी पर मरकूज करनी चाहिए। इधर उधर की बातों में भटकने से हम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकते हैं। यह मत भूलना कि हम जहाज पर सवार महज मुट्ठी भर लोग हैं और यहाँ अगर कोई इंसानी बस्ती हुई तो न जाने इनमें कितने लोग मौजूद होंगे। हम यहाँ गुलाम या कनीजें पकड़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि सोना जमा करने के लिए आए हैं। सोना जिसकी खातिर हमने हजार मील का सफर तय किया है और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरते हुए अपनी जिंदगियों को खतरे में डाला है। मेहरबानी करके ऐसा कोई कदम मत उठाना जो हम लोगों के लिए किसी परेशानी का बायस बने। तुम तो बहुत डरते हो मार्को, अल्बर्ट ने कहा। भला इसमें घबराने की क्या बात है? जाहिर है कि हम यहाँ अयाशी करने तो आए नहीं, लेकिन अगर कोई मुनासिब मौका हाथ लग गया तो इसे हाथ से नहीं जाने देंगे। मेरे ख्याल में हम लोग फजूल बातों में वक्त जाया कर रहे हैं, रोमेरियो ने कहा। इसके बजाय हमें नक्शे को सामने रखते हुए इस जगह का तयन करने की कोशिश करनी चाहिए जिसकी निशानदेही लार्गो के दादा ने की थी। तुम ठीक कहते हो, मार्को ने कहा, और इसके बाद चारों नक्शे पर झुक गए। मेरे लिए अब इस जहाज पर रुकने का कोई फायदा नहीं रहा था। मुझे जो असल बात मालूम करनी थी वो मैं मालूम कर चुका था प्रोफेसर। ये लोग ना तो कज़ाक थे और ना गुलामों के ताजर, बल्कि ये सोने की तलाश में स्पेन जैसे दूर दराज मुल्क से यहाँ पहुंचे थे। मैं खामोशी से इस काट कबाड़ के पीछे से निकला और मैंने चुपके से पानी में छलांग लगा दी। इसके बाद मैं ज़ेरे आब तैरता हुआ तेजी से वापस बस्ती के साहिल की तरफ चल पड़ा और एक बुलंद चट्टान की आड़ में बैठकर यह देखने लगा कि जहाज का रुख किस तरफ है। आया वो साहिल के साथ साथ आगे की तरफ जा रहा है या हमारी बस्ती के साहिल की तरफ आ रहा है? मैंने अंदाजा लगाया कि जहाज का रुख हमारी बस्ती के साहिल की तरफ है। इसका मतलब था कि अल्बर्ट और उसके साथियों ने इस जगह का सही अंदाजा नहीं लगाया था कि जहां सोना मौजूद था, या ये भी मुमकिन हो कि खुद लार्गो का दादा इस जगह की सही और वाज़ेह तौर पर निशानदेही न कर सका। बहरहाल जो भी सूरत हाल हो, यह बात तय थी कि वो लोग गलत जगह आ रहे थे। मेरा जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। मुझे जल्द अज जल्द सोच कर यह फैसला करना था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सीधा नारों के पास पहुंचा। अब वही दोनों कबीलों की मुश्तरका सरदार थी और दोनों कबीले एक दूसरे में जम हो चुके थे। मैं नारों को जाकर बताया, सुनो नारों, कुछ अजनबी लोग हमारी बस्ती की तरफ आ रहे हैं। मुझे अपने इल्म के जरिए इनकी आमद के बारे में मालूम हो गया है और मैं इनके मकासद से भी वाकिफ हो गया हूँ। तुम चूंकि कबीले की सरदार हो, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। ये अजनबी लोग कौन हैं, इनके अज़ाइम क्या है, ये हमारी सरजमीन पर किस लिए आ रहे हैं? नारों ने घबरा कर एक साथ बहुत से सवालात कर डाले। ये सारे के सारे खराब लोग नहीं हैं, मैंने जवाब दिया। इन लोगों का ताल्लुक इस दुनिया से है जहाँ सफ़ेद फाम इंसान बसते हैं और ये लोग हज़ारों मील का समंदरी सफ़र तय करके एक बहरी जहाज़ के जरिए हमारे साहिल की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें से बाज़ अच्छे लोग भी हैं और बाज़ खराब लोग भी हैं, लेकिन अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि इनमें अच्छों की तादाद ज़्यादा है या बुरों की। ताहम हमें इनसे होशियार रहने की ज़रूरत है।